Hello, hello, hello. Welcome to our new show, which is called Am I the Asshole? तो इसका नाम वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा होगा कि किसके बारे में, और अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो यू नो. ठीक है. आई एम योर होस्ट साद इकबाल एंड I am your co-host Shadeb Amir. You guys will know what it is about. हाँ इजीली. तो हम लोग अपना और शो का इंट्रोडक्शन देने से अच्छा हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, which is so the title of this question is, am I the asshole for throwing away uneaten food at my boyfriend's aunt's house? ठीक है. तो I'll read it. This happened Saturday night, so still very fresh, and I don't know how to feel because I had a room full of people hating me. यार इन्होंने अंग्रेजी बहुत गलत लिखी हुई है. ठीक है, तो इनको आई गेस क्लास लेने की जरूरत है. People hate me. Okay. My boy, my boyfriend be clearly disappointed in me, and I just did what I've always done and known since I was a kid. Okay. I've been with my boyfriend for about 6 weeks. Okay, 6 weeks. कितने हुए अजय भाई? एक महीना? Um, 2 हफ्ते. एक महीने 2 हफ्ते या हाँ, now and 1.5 महीने. Saturday. हाँ, 1.5 महीना. हाँ, 1.5 महीना. Okay. I've been with my boyfriend for 6 weeks now, and Saturday was the first day I was going to meet any of his family. Okay, family से मिलने जा रहे हैं. Obviously, I wanted to make a good impression since his aunt really was the one that raised him. His mom was there, but it was very weird and cold relationship that almost seemed like they were strangers. Another post for another time, I guess. अच्छा. Yeah, maybe. देखते हैं. When we got there, I was blown away at how much food there was, and there was only like 11 people, but by there was easily enough main courses and sides to feed double that. It was really good, and I sort of felt like because there was so much food. यार इन्होंने कॉमास वगैरह कुछ भी नहीं मतलब इस्तेमाल किए. तो ओके, जाने देते हैं यार. Because there was so much food, they were expecting me to eat more than I usually would. So I was so stuffed. अच्छा, अच्छी तरह खाना खा लिया. I wanted to make a good impression, so I offered to help clean up. His aunt was very happy to have my help, so I started cleaning the table and started dumping all of the uneaten food in the trash. Acha, I truly had no idea that they had any intention of saving it. His aunt tried to be nice about it, but I could tell she was really mad. His mom, on the other hand, was way more direct and accused me of wasting money, wasting food, and not thinking about the family members who were going to eat later. Sure. We never ever ate leftovers in my house, and food either got eaten or thrown away. I said I was sorry, and his aunt said she would try to understand, but his mom said that I was way too spoiled for this family. ये सेंटेंस इन्होंने लिखा है डबल कोट्स में. अच्छा. Which really hurt my feelings. I tried to talk to my boyfriend about it, and he said he was upset that I was so careless and at least didn't ask first. I said I was sorry and I didn't throw everything away. He said I'd be done enough damage. I'd be done. यार अच्छा, हम इसको सही तरह से रीड कर लेते हैं. इन्होंने गलत गलत लिखा. He said I'd done enough damage before I was stopped. अब इन्होंने पूछा, I get that I messed up, but it was truly out of my own experience, being very different and bad assumption on my part, not because I was being malicious. Was I the asshole? अच्छा, तो शाजिब भाई आपका क्या क्या. अच्छा, हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं फॉर द ऑडियंस जल्दी से, कि ये एक खातून है जो कि क्या कहते हैं, इन ये रिलेशनशिप में आई हैं. 6 वीक्स हो गए इनके रिलेशनशिप को, और ये पहली बार अभी अपने बॉयफ्रेंड के घर पे आई है उसकी फैमिली से मिलने. और उसकी फैमिली ने उसकी आंट के घर पे, और उसकी आंट ने बहुत ज़्यादा खाना बना रखा है, जितना मतलब ये कोई 4-5 लोग हैं, मुझे याद भी नहीं कितने. हाँ, तो 11 लोग 11 गिने थे लोग मेरे हैं. ख्याल. हाँ, हम्म. सही है. 11 लोग हैं, मगर इतना खाना है इनको ऐसा लग रहा है कि ये 22 लोग आराम से खा सकते हैं. तो ये सारा खाना है, तो इन्होंने अच्छी तरह खाना खाया. और फिर जब खाना खत्म हुआ तो ये सारे जब टेबल साफ कर रहे थे,
तो इन्होंने सारा खाना उठा के डस्टबिन में फेंक दिया, ट्रैश में। सही। ठीक है। और जो कि इनको ऐसा लगता है कि ना ऐसा ही होना चाहिए था, मतलब इनके घर में आज तक ऐसा ही हुआ है कि जितना भी लेफ्ट ओवर फूड होता है वो ये लोग फेंक देते हैं। मगर इसके जो बॉयफ्रेंड की फैमिली है, जो उसकी आंट है, उनको और उसकी अम्मी को खास तौर पर बहुत ज्यादा बुरा लगा है। तो ये पूछ रही है सही। क्या, और है ना वो सारे नाराज हो गए इस बात से। तो ये पूछ रही है कि क्या मैंने ये गलत किया, और क्या उसका गुस्सा वजह है या नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे सदीप भाई? um, यहाँ पे मेरे ख्याल में मैं ना ज्यादा, आई वुड स्टे इन द ग्रे एरिया, हाँ क्योंकि यहाँ पे गलती थी लड़की की भी, क्योंकि शी हम्म, थॉट कि हम जो उसके घर में होता आ रहा है वैसे ही हर किसी के घर में होगा, विच इज नॉट ट्रू। हाँ एवरीवन हैज देयर ओन कल्चर, ये होम कल्चर जो लोग फॉलो कर रहे होते हैं। हम बेसिकली अब जैसे हम अपने हाउस होल्ड की एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ तो हमारे पास भी जब कोई भी आ रहा होता है, दावत दावत के लिए आ रहा होता है, तो ऑलमोस्ट जो है वो खाना डबल ही बनता है। हमारी हाँ मेहमानदारी हम लोग सब इसी तरीके से ही कर रहे होते हैं। तो हाँ बट जो लेफ्ट ओवर फूड होता है, वी कीप इट, ये हो सकता है कि अगले दिन या अगले टाइम अगली मील के लिए इस्तेमाल हो जाए, वो यूज हो जाए। और हाँ अगर कोई दूसरा भी हमारे साथ जैसे काम कर रहा होता है, तो दे आस्क के वेयर डू आई हैव टू कीप दिस। हाँ दैट्स द मोस्ट आस्क क्वेश्चन के पहले ये क्या करना है। कोई दूसरा काम कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि भाई दूसरे का कल्चर किस तरीके से काम कर रहा है। बट मोस्टली आई हैव सीन के ऐसा इन अमेरिकन कल्चर के लोग जो है वो नहीं खा, मतलब फेंक देते हैं खाना। आई हैव सीन माय कजन अमेरिकन रिलेटिव्स एज वेल। मैं आई एम नॉट टारगेटिंग एनी नेशन, शादी पे आई एम कल नॉट ट्विटर पे टारगेटिंग आप एनी कैंसिल हो रहे नेशन, होंगे, देख लें। आई एम नॉट टारगेटिंग एनी नेशन और देयर कल्चर, बट आई एम सेइंग कि जनरली फ्रॉम माय एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव सीन हाँ कि इस तरीके से होता आ रहा है। तो ये है कि इट्स बेटर टू आस्क हम्म, कि भाई क्या करना है इसका, इफ यू आर हेल्पिंग अदर्स यहाँ पे। ऑल्दो ऑन द अदर साइड, जहाँ पे उनकी मॉम ने जो कहा था कि लाइक वे टू स्पॉइल्ड, maybe that is too harsh. She हाँ didn't know, it was an honest mistake, it can happen with anyone. So हम्म, yes, वहाँ पे और she apologized for it as well with the boyfriend, और boyfriend का भी उस तरफ से एक अलग ही रवैया आया कि like I'd be done and all that. I think that's way too harsh from my side. तो यहाँ पे जो है वो दोनों साइड की गलतियां थी। I would not say कि black and white यहाँ पे है कुछ। What about you, हाँ sir? यार, हाँ मैं भी बिल्कुल अब वही चीजें कहूंगा अलोंग दोज लाइन हम्म। जो तुमने कही हैं कि हम्म। हाँ यार, हमारे लिए बिल्कुल एलियन सी चीज है कि ना खाना थ्रो कर देना, ठीक है। मे सही बी बात है। बिकॉज के हम लोग एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, या फिर वैसे भी मतलब, और ऊपर से आई गेस कल्चरल डिफरेंस है क्या ना खाने का। हम्म। तो हम हमने हम्म। शुरू से यही देखा है क्या ना, जब भी कोई खाना बचता है या फिर कोई भी दावत होती है, जैसे तुमने बोला कि दावत में एक्स्ट्रा ही खाना बनता है क्या ना, वो कम ना पड़ता है। हमेशा यही सही होता है, बात है। अजम्पशन यही होती है क्या ना, हो सकता है ज्यादा लोग आ जाएं, तो कम नहीं पड़ना हम्म। चाहिए, ज्यादा भले हो। और ज्यादा जब भी होता है हाँ। तो हमेशा यही होता है क्या ना, जो भी टेबल साफ कर रहा होता है, तो हमने यही किया है और देखा भी यही है कि वो लोग पूछते हैं, जिसका भी घर होता है तो पहले उससे पूछते हैं कि ना यार ये खाना कहाँ पे रखना है। ये तो बिल्कुल भी नहीं हम लोगों ने कभी देखा कि ना वो खाना उठा के फेंक दिया जाए। तो या तो ज्यादातर यही होता है कि ना आप उठा के फ्रिज में रख देते हैं खाना, ठीक है। जैसे तुमने कहा क्या ना, नेक्स्ट मील के लिए सेव करने के लिए, या फिर हम्म। वो अगर ज्यादा नहीं होता और थोड़ा सा होता है तो वो पैक कर देते हैं कि किसी किसी को देने के लिए, या फिर जो मेहमान आए हुए होते हैं उन्हीं को पैक करके देते हैं। तो ये भी काफी अच्छा सा मतलब होलसम सा चीज है, ट्रेडिशन है जो कि मतलब यहाँ पे फॉलो होता है। तो थ्रो अवे ट्रू। करने वाली चीज तो हम लोग बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर सकते। और जैसे कि इन्होंने बात की यार, मुझे ऐसा लगता है कि मैं, जैसे आपने बोला ना, आप न्यूट्रल हो रहे हैं, ठीक है, जो कि वर्ड आजकल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बहुत यूज हो रहा है। मगर मैं थोड़ा सा इनके क्या कहते हैं, इसके बॉयफ्रेंड की फैमिली की साइड पे होना चाहूंगा, क्योंकि हम्म। इनको यार
बेसिक यही होता है कि ना, किसी के घर पे हो तो तुम्हें उससे पूछना चाहिए। मतलब तुमने खुद ही हम्म। अज्यूम कर लिया कि तुम्हारे घर में ऐसा होता है तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता था। उनको ये चीज कहनी नहीं चाहिए थी। और भाई प्लीज मुझे कोई कैंसिल नहीं करे इस बात पे, मैं किसी को कुछ जज वगैरह नहीं कर रहा, मगर दिस इज माय ओपिनियन कि उनको ये चीज कहनी तो नहीं चाहिए थी, फैमिली को कहना यू आर वे टू स्पॉइल्ड। मगर अगर ऐसा होगा सामने तो मैं सोचूंगा तो यही कि ये जो इंसान है इसने पूछा नहीं तो उसने यही अज्यूम किया कि सबके घर पे यही होता है, तो दैट इम्प्लाइज कि दे आर स्पॉइल्ड इनफ, के ना उनको लगता है कि सबके घर के मतलब यही सीन है। तो सबसे पहली चीज कि इनको पूछना चाहिए था, ठीक है, कि हम्म। ये क्या करना है। तो इन्होंने ये गलती की कि डायरेक्ट बगैर पूछे इन्होंने ना थ्रो अवे कर दिया। तो हाँ, सही। तो मैं कहता हूँ यू आर द एसहोल फॉर डूइंग दिस बट देन यू अपोलोजाइज, ठीक है। तो यहाँ पर इनको हम्म। वो मिलते हैं कि इन्होंने अपनी गलती मानी और अपोलोजाइज किया। तो थोड़ा सा हाँ। उन लोगों को भी है ना, आई आई गेस बेहतर होना चाहिए, बेहतर इंसान बन के इनकी मतलब इनको फॉरगिव करना चाहिए। और ये नहीं, हाँ, ओके। फॉरगिव करना चाहिए। तो यही है। तो हाँ, इंटरेस्टिंग टेक। तो सही है। Let's go to another interesting question हाँ, which I have for you guys. I'll read it out for you. सही। Okay, so the question is, am I the asshole for not giving my son part of his trust fund early because he refuses to sign a prenup with his fiance? Oh, Um, okay, some background. Uh, I have four kids. My eldest John, that is 27, he is 27 and a male, was with my first wife who died when he was 5. I eventually remarried and got two stepdaughters, Lisa, who is 25, female, and Anne, 18, female. Then my second wife and I had Mike, 13 years old. Um, my wife and I made sure to give them comfortable lives. When John and Lisa graduated from university, we gifted them condo units, basically a space where they can live. Okay, okay. so we will do the same when Anne and Mike graduate. Also, all of them have trust funds that will be released when they turn 30. मतलब उसने एक ट्रस्ट फंड एक रखा हुआ है सबके लिए और वो 30 होंगे तो रिलीज हो जाएगा खैर. आई सही एम है। क्वाइट प्राउड ऑफ माई किड्स. जॉन एंड लीसा graduated from top universities. John has a high paying job as an engineer while Lisa pursued a master's degree in business while she worked in marketing. Eventually, she started her own marketing consulting firm while being a part owner of a spa. Nice. John recently got engaged to his girlfriend of 2 years and they want to get married by the end of this year. She seems nice. Okay. However, However, oh, आ रहा है she, भाई। there is always twist begins with however. Okay. She doesn't earn as much as him. My son spends a lot of money on her on dates and expensive gifts. I understand that it's his money and he can spend it however he wants. She also moved in with him in the condo that I gave him, and as far as I know, she doesn't pay her share of utilities and association fees. And now John is asking to get part of his trust fund so he could use it for the wedding since his fiance doesn't have much money to contribute for their wedding. Okay, okay. स्पाइसी हो रहा है ये। Yes. Now here's where I might be the asshole. I told him I'd release part of his trust fund early if he draws up a prenup with her. He got angry and told me I was being unfair because I released half of Lisa's trust fund last year to help put up her business. He told me that I was playing favorites. I told him that Lisa did something worthwhile with her trust fund. And while a wedding is worthwhile, I told him it doesn't seem safe to use his fund for a wedding to a girl who doesn't bring much to the table. ओह, ये तो अटैक Okay. हो रहे हैं। ओह, अंकल अटैक कर रहे हैं भाई। I told him that I just wanted him to have some security by drawing up a prenup. He got angrier and said I was implying that his fiance is a gold digger. तुम्हारी, Ooh. ओह शिट। My wife and the rest of the family refused to take sides. Am I the asshole? Okay. Edit to update.
there's also अभी कंटिन्यू हो रहा है, अभी ओह अभी अच्छा। ट्रेलर हुआ है, मूवी भी बाकी है पूरी. अच्छा। Okay, the next day after I posted, I had a long conversation with my son. Okay, first I apologized to him for making that comment about his fiancée. I realized it was demeaning and called for. Okay, he realizes his mistake. That's good. हाँ, Second, I asked about their living arrangements. He did admit to paying for everything, including bills and food. She does the cooking sometimes. He even pays for someone to clean because neither of them wouldn't. I asked if she ever offered to pay. He said no. I understand it's none of my business, but the fact that she never offered is raising some flags in my head. I gave him अच्छा। some things to think about and maybe discuss with her, like what would happen if he loses his or her job for some reason, maybe some illness or some accident. He has to stop working. I told him that I have nothing against their arrangement and him spoiling her, but he has to be wiser about his spending habits. Third, I explained the importance of a prenup and I said that I had one with his mom and his stepmom. He still refuses to because, according to him, it might offend her, again raising some flags. So I will stick to my decision and release his trust fund when he's 30, as we initially agreed over. He wasn't happy with this. Lastly, I asked what kind of wedding they plan to have, that they have felt the need to use his trust fund. Apparently, she dreams of having a big wedding on the beach. She also wants to have a photo and video production to announce their engagement, which I ओह find ridiculous. वो कह रहे हैं, अच्छा। okay. They wanted this year but cannot afford it as she is only paying for her wedding dress and my son admitted that he does not have a lot of savings. I told him that it's not practical, but if they really want it, they should wait and save up for it. That's the advice of the father. At that point, I was feeling better about my decision to not release his trust fund early. The way I see it, my son could go broke in a few years, paying for everything and spoiling his fiance or wife. Their trust fund is the last thing all my kids will get from me. That being said, I may be an asshole, but not a total asshole to not support his wedding. My wife and I agreed to give them a certain amount that should cover a nice venue and still have some leftover amount left for other expenses. ओह Okay, that's really good. It will be a wedding gift to them, and if he's still not happy, then there's nothing more I can do. Sorry, apologies. If they go NC or low contract, I'd still feel at peace with my decision. I provided for him and I tried to protect him. If she leaves him and he ends up losing everything, I'd hate for that to happen, but that's on him. But I do hope their marriage works out. अच्छा। Okay, ओह sir, दैट आपका वाज हैवी। take it. दैट वाज हैवी। अच्छा यार आई थिंक सॉरी, मैं हाँ एक सेकंड हाँ सॉरी. बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं पहले. हाँ यार यस। तो बेसिकली ये है कि एक फादर है जो अपनी कहानी बता रहा है कि उसके 4 या 5 बच्चे हैं, आई गेस 5. हाँ, तो हाँ पा उसमें से अब जो है, जॉन इज द वन हु इज मैरिइंग एंड ही वांट्स टू यूज हिज ट्रस्ट फंड इन हिज वेडिंग. मतलब वो चाह रहा है, जो उसके अब्बू ने उसके ट्रस्ट फंड रखा था हर एक बच्चे के लिए, जो और जो उसने रिलीज करना था कि वो 30 इयर्स के जब हो जाए उसके बाद मिल जाएगा उनको. तो मतलब एक बट जॉन सेकंड ने कहा. मैं मतलब हाँ हाँ. बेसिकली ये सीन है कि इन्होंने एक अपने सारे हम्म. बच्चों के लिए एक ट्रस्ट फंड रख रखा है जो कि मतलब एक अकाउंट में सेव्ड है जो कि ये 30 के होंगे तब ये रिलीज करेंगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, अच्छा बिल्कुल ऐसे सही। ही. तो मगर जॉन को नीड बहुत पहले की पड़ गई है, तो ही सेज कि ही वांट्स टू यूज हिज फंड ऑन हिज वेडिंग, कि ताकि दे कुड अफोर्ड द वेडिंग जो उसकी फियोंसी डिमांड कर रही है, दैट इज ऑन द अच्छा बीच एंड ऑल दैट. बहुत फैंसी वेडिंग है. हाँ um, तो उसके फादर इज रिफ्यूजिंग टू डू दैट, क्योंकि he sees के it is not fair of him to ask for this trust fund and to spending on a wedding. के शादी के ऊपर आप अपनी जो है वो सारा फंड खर्च कर दो, जो बेसिकली उसके फादर ने उसके बुरे टाइम्स के लिए रखा है, या कोई बिजनेस के लिए या स्टडीज के लिए उसने रखा हुआ था. और रीजंस भी उसके फादर ने यही दिए हैं कि भाई मैंने तुम्हारे ये बुरे वक्त के लिए किया है. सामने से उसका बेटा आर्ग्यू कर रहा है कि आपने लीसा को तो दे दिया था, मतलब ट्रस्ट फंड, लाइक मुझे नहीं दे रहे.
तो लीसा ने के लिए वो था वो दैट शी यूजेस शी यूज्ड अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, बट जॉन जो हाँ। है वो कह रहा है कि उसको वेडिंग पे यूज करना है, और ऑन द अदर हैंड उसकी फियोंसे जो है शी इज नॉट ब्रिंगिंग मच टू द टेबल, कि लाइक हाउस होल्ड वर्क नहीं करते, तो वो भी एक मेड हायर की हुई है, वो लोग वो काम करवाते हैं उससे। और जो है उसकी जॉब जो उसकी फीस है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो गिफ्ट्स और डेट्स वगैरह के भी पैसे जो है वो सारे जॉन ही पे करता है। तो ये सारी कहानी है। और ये कह रहा था उनके फादर ने तो बेसिकली सजेस्ट ये किया कि एक एग्रीमेंट आप साइन कर लें कि प्रेनप जिसको कहा था मैंने जब इसके अंदर पढ़ा था, तो प्रेनप बेसिकली ये होता है कि लाइक यू डिसाइड द फाइनेंशियल एसेट्स आपकी जितने भी हैं, और डिवोर्स या सेपरेशन के बाद वो दोनों के बीच में किस किस तरीके से डिवाइड होंगे। हम्म। तो वो ये चाह रहा था कि वो प्रेनप साइन कर लें ट्रस्ट फंड यूज करने से पहले, कि भाई प्रेनप साइन कर लो या तो, ताकि और उसमें वो ये भी कवर हो अगर जाएगा कि है ना, ये घर पे हम्म, जो मतलब फाइनेंशियल जो भी होती है डिस्ट्रीब्यूशन, वो किस तरीके से होगी घर के हम्म, डेली चोर्स वगैरह में और सारी चीजों में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके ऊपर वो गुस्सा हो गया था और उसने कहा कि नहीं भाई ये करना है, बट हिज फादर डिसाइडेड कि नहीं मैं ट्रस्ट फंड नहीं दे सकता, अम, इस चीज ये के मैं लिए। 30 पे ही रिलीज करूंगा, हाँ वेडिंग के लिए मैं ट्रस्ट फंड नहीं दूंगा, मैं 30 पे ही रिलीज करूंगा। सो ही आस्क्ड एम आई द एस्टोल अच्छा। नाउ, अब आपका क्या टेक है इसके अच्छा, तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मतलब ऊपर? आई डोंट नो हमें कहना चाहिए इंटरेस्टिंग या नहीं, किसी की जिंदगी के मसले चल रहे हैं, हम इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं। खैर, सॉरी फॉर दैट। तो हाँ, यार हम्म सीन ये है कि अब मैं मतलब शुरू से लेकर चलता हूँ। अब ये जो पाप है, इन्होंने हम्म मतलब सबके लिए ट्रस्ट फंड रखा हुआ है, और इन्होंने पहले से ये चीज एस्टेब्लिश कर दी है कि है ना, जब आप 30 के हो गए तभी आपका ये फंड रिलीज होगा। तो सही बात है। अब ये चीज पहले से स्टैब्लिश है, तो आई थिंक जब तक वो इंसान 30 का नहीं होता ना, तब तक ये ट्रस्ट फंड इज देयर फादर्स प्रॉपर्टी, मतलब देयर पेरेंट्स प्रॉपर्टी। ठीक है। तो मतलब अभी तक ये जैसे जॉन है, ये 30 का नहीं हुआ, तो ये ट्रस्ट फंड इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, इसके मतलब फादर की प्रॉपर्टी है। तो वो चाहे जो सही। भी करे, ठीक है। और फिर अब हम दूसरी बात आते हैं कि ना, एम्पैथी, वो आई गेस जॉन एक्सपेक्ट कर रहा है कि फादर थोड़ा सा एम्पैथेटिक हो, और है ना, इनकी किसी चीज के लिए इनको अभी जरूरत है, तो उसके लिए ट्रस्ट फंड रिलीज करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है अपने फादर से। मगर द थिंग इज कि है ना, ये कोई चीज नहीं है जिसके लिए बंदा मतलब थोड़ा सा सोचे, और है ना, मतलब कोई, आई डोंट थिंक कि ये कोई एसेंशियल नीड के अंदर आती है कि है ना, आपको पैसे चाहिए शादी के लिए। तो ये आई गेस थोड़ी सी वो होती है कि लग्जरी के उस पे आ जाती है कि है ना, मुझे पैसे चाहिए राइट। कोई अपनी लग्जरी नीड पूरी करने के लिए। तो और जैसे कि इसने कहा कि ना, ये अनफेयर हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने लीजा के लिए फंड रिलीज कर दिया था 30 से पहले आधा, हम्म मगर मेरे लिए रिलीज नहीं कर रहे। तो जैसा कि तुमने बात कही, बिल्कुल सही कहना, लीजा के लिए फंड इसलिए रिलीज किया था क्योंकि उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना था। ठीक है, विच इज अ राइट मतलब रैशनल थिंग टू डू। तो उसके लिए राइट मतलब रिलीज किया जा सकता है कि ना, उसको बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो इनको लगा कि ना ये चीज सही है, तो उन्होंने कर दिया रिलीज। और गिवन दैट मैं इस सारी चीज का मतलब प्रेमिस ये लेकर चल रहा हूँ कि ये 30 से पहले तक इनके मतलब पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है जो ट्रस्ट फंड है। तो उनकी मर्जी थी कि ना, लीजा के लिए उनको राइट रिलीज करना था 30 से पहले, और उनको लगा कि ना ये इसका वैलिड वो है, क्या कहते हैं, नीड, तो इन्होंने रिलीज कर दिया। तो इसकी नीड सही। इसलिए वैलिड नहीं लग रही क्योंकि यार इन्होंने जैसे कहा कि ये काम बहुत कम पैसों में भी हो सकता है, ठीक है। और ये ऐसी चीज है कि इट्स अ वन टाइम थिंग। अगर हम हम्म। बिल्कुल रैशनल होके भी अगर इस चीज के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं कि ना, अगर किसी बंदे को बहुत ज्यादा खर्चा करना है अपनी शादी पर, तो इट इज अ वन टाइम थिंग। मतलब आई अंडरस्टैंड क्या है ना, बहुत बड़ी चीज होती है ऑब्वियसली, क्या है ना, आप एक बार, ओके, एक दफा ही शादी करे। हाँ। तो ये चीज मतलब बिल्कुल वही होती है क्या ना, एक दफा ही आप अ, वो कर रहे होते हो, और मतलब ये आपके लिए बहुत बड़ी डील होती है क्या ना, आपकी शादी में मतलब
और जितनी बेहतर हो सकती हो। मगर यार जब काम जैसे उन्होंने बोला कि एक अच्छी वेडिंग उससे कम अमाउंट में हो सकता है, तो और आप वही बात है ना कि आपके पास जितना है नहीं, तो आप उससे हाँ, ज्यादा का क्यों मतलब वो कर रहे हो, क्या कहते हैं, एक्सपेक्ट मतलब कर रहे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हो, या ये फिर आप यहाँ पे उससे ज्यादा का क्यों यहाँ चाह पे रहे हो। आपकी वही वाली बात आप मेरे ख्याल में कहना चाह रहे हैं कि भाई जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ। बिल्कुल राइट। एग्जैक्टली ऑन पॉइंट। यही बात है क्या ना, आपकी हम्म। जितनी चादर है उतना पाँव फैलाओ। तो अगर जैसे आपके पास जितनी आपकी कैपेसिटी है, तो आप उसके हिसाब से शादी करो। आप क्यों अपना ट्रस्ट फंड, और इस बंदे को आई गेस बाद में जाके रिग्रेट होगा अगर इसने यहाँ से पैसे रिलीज करा लिए और शादी पे यूज कर लिया, उसको बाद में जाके हम्म। रिग्रेट होगा। क्योंकि अगर बाद में इसको बिजनेस के लिए या फिर किसी चीज के लिए या फिर अचानक से कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है और उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो उसको रिग्रेट होगा हम्म। कि मैंने ऐसी चीज के ऊपर इस्तेमाल कर ली जो कि मतलब इतनी कोई वो नहीं थी, क्या कहते हैं, वर्थ इट जिसका नहीं थी। लॉन्ग टर्म कोई फायदा नहीं था। हाँ, आई दैट्स थिंक बेटर। कि द फादर इज नॉट द एसोल, द सन इज। ठीक है, क्योंकि वो इस चीज को समझ नहीं रहा। वो मतलब अभी तक ये तो हम्म। बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई, जैसे हम लोग बिल्कुल छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रही होती थी कि ना हमें ये खिलौना सही। चाहिए 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 चाहिए, घर चाहिए वाले मना चाहिए। कर रहे होते थे, तो वही बात है। राइट। तो आई थिंक मेरा ये है हाँ, तो। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा, एंड आई एग्री विद यू हियर टोटली कि हम्म। यहाँ पे his father has made a very rational decision for him, for his benefit। हाँ। जहाँ पे इस जॉन को ये समझना चाहिए कि भाई उसके फादर ने उसकी कुछ बेहतरी के लिए ही एक रखा हुआ था ना, और ये सब बच्चों के लिए रखा हुआ है ना ट्रस्ट फंड। हम्म। बेसिकली आप ये है कि आपके बुरे वक्त में काम आएगा। बुरा वक्त ये नहीं है आपका कि आप वेडिंग के ऊपर खर्च कर दो, दैट इज नॉट योर बुरा वक्त भाई। हम्म। वेडिंग जो है चलो इज अ वन टाइम थिंग। आई ये बात बिल्कुल समझ में आती है, लोग इमोशनल होते हैं उस टाइम पे and बोलते हैं कि एक ही दफा होती है, क्या फर्क पड़ता है, सारे अरमान आप पूरे कर लो। बट अरमान उतने वाले अरमान अरमान उतने जागे तेरे वापस। अम, सॉरी सर, कंटिन्यू। तो हाँ, तो ये है कि मगर आप उतने करो ना कि जब आपके पास ऑलरेडी इतना हो, आप बेसिकली आप ये समझो ये फंड आपका भी है ही नहीं ना, हाँ क्योंकि एग्जैक्टली। आपके वो फादर की प्रॉपर्टी, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि भाई उसके फादर्स की प्रॉपर्टी। और हाँ, आप ये बताओ कि भाई मैं बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ जहाँ पे आपकी लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट है वो चीज, और दैट इज गोइंग टू प्रॉफिट यू इन अपकमिंग ईयर्स, फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर फ्यूचर, दैट इज गुड। वहां पे आपके फादर या आपकी मदर आपको नहीं रोकेंगे कि भाई कि आप पैसा क्यों खर्च कर रहे हो हमारा। राइट। वो आपके बेनिफिट के लिए आप खर्च कर रहे हो, कि वो भी सामने वाला भी समझेगा ना कि भाई ठीक है। हाँ। लीसा को भी जब उन्होंने किया, बिजनेस सेटअप करने के लिए किया, तब तो भी उन्होंने कुछ सोचा होगा ना कि भाई हाँ, ये इसके फायदे के लिए ये चीज है। अब वेडिंग के अंदर आप इतनी सारी चीजें खर्च कर रहे हो और ऊपर से उनके सामने सारी वाली चीजें भी वैलिड है कि इतनी एक्सपेंसिव वेडिंग करने की हम्म। जरूरत ही क्या है, जब वो चीज उससे कम अमाउंट में हो सकती है आपके सेविंग्स करके करने यस। के साथ, और आपके पास सेविंग्स इतनी है भी नहीं, सेविंग्स भी खत्म हो चुकी हैं आपकी अपनी। हाँ। तो लाइक यू आर लिविंग हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन एंड देन यू वांट अ बिग फैंसी वेडिंग ऑन टॉप ऑफ दैट। सो दैट्स रियली मतलब नो सेंस। बिल्कुल डजंट मेक एनी वो सेंस। वाली तो यहाँ पे सन इज द एसोल। आई टोटली एग्री। आई होप कि अगर ये कहीं गलती से उसके पास पहुंच जाए किसी दिन तो उसको So, अकल आ जाए। बट या हाँ। और फिर वो बात भी है, जैसे इन्होंने एडिट के बाद लिखा क्या है ना, मैंने उससे हम्म। बात की तो वो मैं मतलब उसकी नॉर्मल वेडिंग और है ना, और भी दूसरी चीजें पता नहीं क्या कही थी इन्होंने, कि उसके लिए मैं अमाउंट एक हाँ, डिसबर्स चिप कर कर दूंगा। रहा हाँ, या क्या है ना, वो सारी चीजें कवर हो जाए, तो मतलब फादर अपने मतलब क्या कहते हैं, आउट ऑफ द वे जाके ये चीज भी कर रहा है। क्या है ना, तुम्हारी नॉर्मल हम्म। वेडिंग के लिए है ना, मैं मतलब पैसे रिलीज कर रहा हूँ, मगर इस चीज को मैं नहीं कर रहा। तो मतलब इतना ज्यादा भी करना इज। हाँ, लाइक क्योंकि फादर अब ये भी सोच रहा है कि भाई चलो आप ट्रस्ट फंड रिलीज नहीं करें, मगर उसके ऊपर भी हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ, हाँ। नॉर्मल वेडिंग के लिए मैं जितना कर सकता हूँ मैं हम्म। कर लूंगा।
मगर मैं फंड रिलीज नहीं कर सकता। लाइक तो वहां पे ये भी है कि उसके फादर और मदर ये भी सोच रहे हैं कि भाई चलो वेडिंग में कुछ और हम कर भी लेते हैं, मतलब ताकि और थोड़े कुछ ज्यादा नहीं तो कुछ अरमान ही पूरे हो जाए। हाँ। लाइक सम विशेस। सही सही सही, मुझे फिर से गाना याद आ रहा था मगर एक बार सही है। ठीक है। तो और दूसरी चीज, जैसा कि तुमने कहा कि इस बेटे को चाहिए कि ना ये जाके थोड़ी देर ओपन माइंड से सोचे, अपने मतलब जो राइट। फादर पॉइंट ऑफ व्यू है ना उसको समझने की कोशिश करे, थोड़ी देर सुकून से बैठकर खुली हवा में जाके, भले अगर उसको हम्म। भी करना है तो भले उसके साथ कर ले, मगर क्या कहते पर्सनल हैं चॉइस। हाँ, खुले दिमाग से सोचे तो आई गेस उसको ये चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि मतलब इतना मुश्किल नहीं है इस चीज को समझना कि है ना वो राइट अनरीजनेबल हो रहा है बेटा। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही। तो आई गेस इस क्वेश्चन को दैट इज इट। रैप अप हमने कर लिया। तरीके से कर लिया है, बिल्कुल। ओके, तो यार ये फर्स्ट एपिसोड था, इसके बीच में मेरी लाइट चली गई तो मुझे यहाँ पे लाइट की सोर्स चेंज करनी पड़ी है, और गर्मी भी बहुत हो रही है। तो हम लोगों ने इसमें ये दो क्वेश्चंस कवर किए हैं। लीव योर कमेंट्स अगर आप लोगों को कोई कुछ इसके बारे में कहना है, एंड आई होप यू हम्म। लाइक्ड इट। और शायद पे We all hope. We hope you really like this show. We will continue this, और हम ऐसे ही जो है डेली लाइफ लोगों के लाते रहेंगे क्वेश्चंस और फिर डिस्कस करेंगे। मे बी दैट वुड क्रिएट एन इम्पैक्ट, हाँ सोशल होपफुली। इन्फ्लुएंस। हम जितना हम कोशिश कर सकते हैं कि हम वो करें। एंड यू गाइस कैन लेट अस नो कि हाउ हाँ डज दिस वर्क आउट फॉर यू। ओके। और दूसरी चीज, डिस्क्लेमर आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया है तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज यस एन प्लीज। इनोसेंट ऑनेस्ट शो। ठीक है। ओके। या ओके। बाय। सी यू गाइस।